कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो बेसिकली मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करने के लिए होता है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन सिस्टम, और व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, और explain block diagram of communication system, or explain basic communication system, or explain important blocks of communication system. Answer is only one, same answer for all questions. Answer कैसा है बात करते हैं। Initially you have to draw this block diagram. इस block diagram में total 6 blocks हैं। फर्स्ट ब्लॉक इज इंफॉर्मेशन सोर्स, दूसरा ब्लॉक है इनपुट कंडीशनर, थर्ड वन इज ट्रांसमीटर, देन चैनल, देन रिसीवर एंड देन आउटपुट ट्रांसड्यूसर। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स 3 हैं, ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। ठीक है, बाकी उसमें एक्सटेंशन ऐड किया गया है आगे पीछे। ठीक है, सबसे पहले ब्लॉक की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स is very important portion of this communication system. As we know that the communication system is for the communication of the message or information. This message is generated by the information source. So this message can be in the form of words, in the form of sentences, in the form of sound, in the form of medical signal, in the form of something. The information can be the picture, image, a video, whatever. So information is information. One example of information is given here, that is the vocal tract, which generates the speech signal of the human being. Okay, so this you can see in the broader view. हमें इसके अंदर के ये सब वर्ड्स के बारे में नहीं जानना है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताना है, हम लोग कोई बायोलॉजिकल पर्सन नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्पीच सिग्नल वोकल ट्रैक्ट से जनरेट होता है। ठीक है, सेकंड ब्लॉक इज इनपुट कंडीशनर। इनपुट कंडीशनर कन्वर्ट्स द one form of energy into another form. The message form is converted to the electrical form because we can process only in the electrical form, we cannot process in other forms. So therefore we need a transducer, we need a converter which can convert the signal into electrical form. So this here the signal will be converted to the electrical form. One example is shown in the picture here. One picture I have given. This picture is showing the microphone. So microphone is an example of this input conditioner which converts the speech into electrical signal. Let's go to the next one is transmitter. Transmitter is important part of the communication channel. In what does this does? This modulates the signal. Modulation क्या है? Modulation means converting this our signal to a signal which can propagate through the medium or channel. हमें अपने सिग्नल को ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करना है जो कि बहुत दूर तक चला जाए। ठीक है, नॉर्मल सिग्नल, नॉर्मल हमारी वॉइस एग्जांपल के लिए बहुत दूर तक नहीं जा सकती है, तो हम उसको ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं कि बहुत दूर तक चला जाए, तो उसका जो प्रोसेस है उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। सिंपल। चलिए, और मॉड्यूलेशन के बाद सिग्नल रेडी होता है चैनल के थ्रू मूव करने के लिए। चैनल्स कैसे हो सकते हैं? एयर हो सकता है, कोई वायर हो सकता है, कोई कवर्ड ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, कुछ भी पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहां से सिग्नल चल सकता है। ठीक, अब चैनल की ही बात करने वाला हूं मैं। चैनल और नॉइज के बारे में बात करते हैं। तो चैनल जो है, चैनल्स is the medium, channel is a medium in which signal travels from transmitter to receiver. Based on the way of communication, channels are point to point channel or the channels are broadcasting channel. Okay,
and based on its physical way, the channel can be a covered media, channel can be open air also. Okay, हम पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल के एग्जांपल लेंगे और ब्रॉडकास्टिंग चैनल के एग्जांपल लेंगे, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब आपके जो ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में एक चैनल रहेगा, वो सिर्फ एक ही ट्रांसमीटर एक और रिसीवर को सपोर्ट करेगा। ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक ट्रांसमीटर होगा, बहुत सारे रिसीवर हो सकते हैं, सिंपल, ठीक है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आपको पता है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग आपको पता है, एक जगह से ट्रांसमिट होता है, बहुत जगह रिसीव होता है, ठीक है। देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल के एग्जांपल्स हैं। वायर्ड लाइंस, मतलब वायर कनेक्ट कर दिया आपने ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, सिंपल सी बात। दूसरा माइक्रोवेव लिंक्स, मतलब ट्रांसमीटर और बीच के और रिसीवर के बीच में एयर मीडिया के थ्रू बस उन्हीं के बीच में लिंक रहेगा, ठीक है, स्पेशल लिंक, माइक्रोवेव लिंक। तीसरा एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाला, ठीक है। ये है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर्स ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, ऑल्दो उनके बहुत सारे यूज हैं, बट जनरली ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर ब्रॉडकास्टिंग के लिए लेना है। ब्रॉडकास्टिंग के एग्जांपल्स हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिसमें मान लो फॉर एग्जांपल के लिए एक वेदर सैटेलाइट है जो वेदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एक एरिया की और सभी को ब्रॉडकास्ट करता है। दूसरा एग्जांपल टेलीविजन ब्रॉडकास्टर है, टेलीविजन का ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन के लिए एक बना स्टेशन बना हुआ है, टीवी स्टेशन, दूरदर्शन का स्टेशन, वो बहुत सारे जगह पे एंटीना लगे होते हैं और रिसीवर एंटीना लगे होते हैं, वहां पे ब्रॉडकास्ट करता है। वैसे ही रेडियो ट्रांसमीटर होता है, एक जगह से ब्रॉडकास्ट करता है और बहुत सारी जगह पे रिसीव होता है, ठीक है। सो ब्रॉडकास्टिंग के एग्जांपल्स हैं, ये आपको एग्जांपल बताना है, ठीक है। फोटो वोटो नहीं बना सकते ना एग्जाम में, ठीक है, फोटो सिर्फ समझने के लिए है, तो फिर एग्जाम में फोटो वोटो बनाने लगोगे तो तुम्हारा सारा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये फोटो वोटो एग्जाम में बनाने के लिए नहीं है, ये फोटो सिर्फ देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। फिर पता चला एग्जाम में कह रहे हो कि सर एग्जाम में हम फोटो वोटो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये समझ लो, ये सब फोटो जो है एग्जाम में नहीं बनाना है, ये सिर्फ समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट नॉइज के बारे में बात करें तो नॉइज जो नीचे से लगा हुआ है ना इसमें, ये नॉइज, नॉइज चैनल में जनरली आता है। नॉइज वैसे तो और भी जगह आ सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबल जगह इसकी चैनल है। नॉइज क्या है, कम्युनिकेशन में जो भी इंटरफेरेंस हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम आ जाता है, वो नॉइज है, ठीक है। तो नॉइज आ जाता है चैनल, तो नॉइज को हटाने का काम कहाँ पे होगा, अगले वाले ब्लॉक में, रिसीवर ब्लॉक में। रिसीवर ब्लॉक का काम क्या है, सिग्नल को रिप्रोड्यूस करने का, जो सिग्नल में नॉइस वॉइस आ गया है उस नॉइस वॉइस को हटाने का, और डिमोडुलेशन परफॉर्म करना। डिमोडुलेशन क्या है, जब हमने मॉड्यूलेशन किया था पहले यहाँ पर ट्रांसमीटर में, ट्रांसमीटर में जो मॉड्यूलेशन किया था उसको रिवर्स बैक करने के लिए डिमोडुलेशन किया जाता है। सो इन द रिसीवर वी परफॉर्म द डिमोडुलेशन प्रोसेस. The main function of the receiver is to reproduce the message signal in electrical form from the distorted received signal from the channel. This is accomplished by the process known as demodulation process, which is carried out in the receiver. This is a reverse process of modulation. Okay, next block is output transducer. Output transducer converts back the electrical signal to its original signal. Okay, thank you for watching. This much is sufficient for answering. Okay.